Hello everyone, now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is nature of science. The particular topic related to physical science, paper number 7 of B.Ed semester 2. As you know that science, that means most important subject related especially for the student, those who know about the each and everything of the नेचर। वैसे छात्र जो खासकर प्रकृति के प्रति उनकी रुचि है जागृत या उनकी इच्छा है विशेषकर जानने की, उसके लिए विज्ञान जो है एक महत्वपूर्ण विषय है। फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान, जो कि B.Ed सेमेस्टर 2 में पेपर नंबर 7 के अंतर्गत मैं विज्ञान की प्रकृति के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने विज्ञान के बारे में यानी भौतिक विज्ञान क्या है उसके बारे में बताया था। आज विज्ञान की जो प्रकृति है उसमें 10 पॉइंट मैंने पिछले क्लास में चर्चा की थी, उसको एक एक करके चर्चा करूँगा। जो शुरुआत के जो 3 पॉइंट है मैं सबसे पहले उसे बताऊँगा, उसके बाद रिमेनिंग पॉइंट। अगर शुरू की बात करूँ तो दैट मीन्स साइंस, दैट मीन्स फिजिकल साइंस एज ए नेचर ऑफ दैट मीन्स डोमेन, यानी एक अन्वेंशन यानी खोज का एक आधार है, सोच है कि कैसे जो है नई चीज़ों को खोजे, जानकारी ले। दूसरे अगर बात करें तो विज्ञान के नज़रिए से कोई प्रकृति को एक देखने का तरीका होता है कि प्रकृति को या नेचर को किस प्रकार से देखते हैं, विज्ञान को कैसे समझते हैं, हमारे समझने की जानने की शैली क्या है, ये भी जो है वो प्रकृति है। दूसरा अगर बात करें हम तो यानी विज्ञान चलने वाली यानी गत्यात्मक, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि वह कंटिन्यूअस चल रही है, कैसे चल रही है, क्या उसका आधार है, और साथ ही साथ उसको हम देखते किस प्रकार से हैं। दैट मीन्स द मोड ऑफ लुकिंग द नेचर, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो विज्ञान की जो प्रकृति उसका आधार अलग अलग है, सिलेबस में भी हमारे दिए हुए हैं। मैं पहले उस तीनों को जो है वह आपको क्लियर कर रहा हूँ, रिमेनिंग पॉइंट उसके बाद क्लियर करूँगा। चलिए मैं आपको 3 पॉइंट को और विस्तार से बता रहा हूँ। Now again welcome to video lecture class B.Ed semester 2 paper 7 physical science. Now unit 1 nature of science. First know about the nature of science. Science as certain characteristics which distinguish it from other sphere of human. These characteristics define the nature of science. These also set the terms on which you can engage with science. These are, that means number 1, science as domain of inquiry. As you know that the knowledge is now organized in several disciplines for the convenience of study. This knowledge is based on inquiry, observations and logical extensions, and is testable by experiment or has logically convincing explanation. Next point, it is this organized knowledge with inquiry, logical reasoning and facts, that is the certain experimentation as its central themes that we call science. And the last point, science may be rightly be said to be as domain of inquiry. Now second one is science as a particular way of looking at nature. It is the most important and vital point regarding the nature of physical science. Generally, a morning walker looks at the rising sun, pay observation to the sun, that means all of you know as the god. Another walker
with a scientific way in her mind for knowing the nature of sun. At that time of an epidemic, people take to praying and seek divine intervention to save humanity. A science, on the other hand, that means seek or emphasize the process how to cure from the disease or the epidemic period. At that time of the particular condition, it indicates that means your positive thinking always helpful for the activity, and always that means way of thinking or seeing the particular matter or particular problem. That's why science has a particular way of looking at the nature, that is most important and vital for the process of thinking, my dear student. Now the third point, science is a rapidly expanding body of knowledge. Newer disciplines are being discovered and established every day. The older ones are being enriched by researchers, being carried out in institutes of higher learning. Not only in the volume of knowledge increasing at a particular pace, but the newer knowledge is also replacing the older knowledge. For example, the audio tape is now almost slightly decreases in the use, and in the particular situation, that means compact disc, CD or other things replaced or rapidly replaced, better you say that, rapidly replaced by the older one. It indicates that science has a rapidly expanding body of knowledge, and in this respect science is a highly dynamic body of knowledge. नाउ अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। सर्वप्रथम विज्ञान की प्रगति के बारे में, प्रकृति के बारे में बात करूं। समय के साथ विज्ञान में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। यह भी देखा गया है कि विज्ञान के मायने भी बदलते जा रहे हैं। विज्ञान की विशेषताएं दिन प्रतिदिन प्रकृति के अनुरूप कुछ नई चीज़ें और नए के स्थान पर पुराने के स्थान पर नई चीज़ें स्थान लेती जा रही हैं। कई वैज्ञानिक और शिक्षाविदों ने विज्ञान की प्रकृति को लेकर अपने अपने विचार भी अलग अलग समय पर चर्चा करते आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि विज्ञान व्यवहार के आधार पर है या क्रिया भी है। कुछ लोग क्रमबद्ध तरीके से जांच पर विश्वास करते हैं, कुछ ज्ञानेंद्रियों पर, तो कुछ घटना जो हो रही है उसके ऊपर में। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की प्रकृति कुछ निम्नलिखित है। नंबर 1, विज्ञान जांच के एक क्षेत्र के रूप में, या विज्ञान एक अन्वेषण का कार्य क्षेत्र के रूप में। यदि मैं विज्ञान की इस प्रकृति की बात करूं तो हम सामान्यतः वातावरण को देखते हैं कि उसमें उपस्थित वस्तुओं को तथा होने वाली घटनाओं आदि को अनुभव करते हैं और उस अनुभव को एकत्र करते हैं, दैट मीन्स कलेक्शन द फीलिंग, एंड इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से उनकी जांच करते हैं और सारे चरण जांच या जानकारी लेने के बाद
अपने अनुभव की समझ को उपयोग करके फिर कुछ साझा चीज़ों को यानी लोगों के बीच में साझा करते हैं या शेयर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि छात्रों की सोच प्रेरणा भी कारगर होती है। वो सोचते हैं, पीछे वाली चीज़ों को पढ़कर एक आधार बनाते हैं, नई चीज़ों को जानने सीखने की प्रयास करते हैं और शिक्षक भी उन्हें इस क्रिया के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान एक अन्वेषण या जांच के एक क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। दूसरी अगर बात करूं तो विज्ञान प्रकृति को देखने का एक विशेष तरीका है। सामान्यतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विज्ञान एक गत्यात्मक पहलू है, यानी गत्यात्मक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि उत्पाद यानी प्रोडक्ट जो है वह एक प्रक्रिया के आधार पर हमें पहुंचाता है, यानी जो प्रोडक्ट होता है प्रोसेस के बाद ही प्रोडक्ट हमें पता चलता है। हम कह सकते हैं कि विज्ञान एक चक्रीय प्रक्रिया है। यह भी क्यों? कि वैज्ञानिक द्वारा ज्ञान सदैव अस्थायी होता है। कुछ वर्षों के बाद अगर उसी को काम करके अगर हम देखें तो कुछ नई चीज़ें सामने नज़र आती हैं। तो प्रश्न यह है कि आसपास की दुनिया में उपस्थित वस्तुओं या घटनाओं पर आधारित होनी चाहिए। दूसरी प्रयोगों और अवलोकन के आधार पर होना चाहिए और अवलोकन को देखने का एक तरीका होना चाहिए कि किस प्रकार से आप उस चीज़ों को देखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है और उद्देश्य तक, जिसमें कि हम विशेष तरीके से देखते हैं और समझते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान एक प्रक्रिया के साथ उत्पाद भी है। आवश्यकता है कि हम उसे किस विशेष तरीके से देख रहे हैं। तीसरी जो प्रकृति की बात करें तो विज्ञान ज्ञान का तेजी से विस्तार करने वाला एक निकाय है। हम जैसा कि अभी इसके पूर्व में चर्चा की है कि विज्ञान जैसे जिस तरीके से हम देखें उस तरह से हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं। विज्ञान का निरंतर विकास हो रहा है। हम सभी यह जानते हैं कि विज्ञान का जो ज्ञान का आधार है वह गत्यात्मक है, यानी चलने वाली है। कुछ समय के बाद जो किए हुए कार्य जो हम उसको अध्ययन करते हैं दोबारा, तो उसमें कई परिवर्तन आए हुए रहते हैं या आते रहते हैं। हम सभी कह सकते हैं कि विज्ञान के ज्ञान के पिंड का विस्तार हो रहा है और इस ज्ञान के जो मूल तत्व हैं या सिद्धांत नियम हैं, ये सभी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और विज्ञान की पुस्तक के विभिन्न प्रकरण अगर हम देखेंगे तो एक के बाद दूसरे में जो है वह कुछ चीज़ें संशोधित होकर अगले बुक में नज़र आती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अवलोकन के आधार पर, कार्य करने के तरीके के आधार पर और समय समय पर जो परीक्षण होते हैं उसके आधार पर विज्ञान ज्ञान का तेज़ी से विस्तार करने वाला एक निकाय है। क्योंकि पूर्व के ज्ञान के आधार पर एक चीज़ों पर हम हमेशा निश्चित नहीं हो सकते हैं। अवलोकन के अनुसार, जांच के अनुसार, क्रिया करने की विधि के अनुसार या प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से विज्ञान का ज्ञान तेज़ी से विस्तार हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान ज्ञान का तेज़ी से विस्तार करने वाला एक निकाय के रूप में है। तो आपने देखा कि मैंने इस 3 पॉइंट को, जो इसके नेचर थे, उसको मैंने अभी स्पष्ट किया। आगे के क्लास में जो बाकी इसके बचे हुए और भी जो प्रकृति है उस प्रकृति के बारे में मैं आपको स्पष्ट करके बताऊंगा। लास्ट में जो हमारे छात्र हमारे वीडियो को प्रतिदिन समय पर चाहते हैं कि उन्हें मिल जाए, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको यथा उचित समय पर आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।